Good morning, students. Today, we are going to revise chapter Combustion and Flame. What do you mean by combustion? What is the definition of combustion? Just recall it. It is a process जिसमें substance जो है वो burn करता है to produce heat and light. Means the substance is reacting with oxygen to produce, to give off heat and light. And the fuel, the substance that undergoes combustion, जो फ्यूल बर्न कर रहा है, जो सब्सटेंस जो है वो बर्न कर रहा है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड fuel, and that is a combustible substance. So two type of substance we have: combustible substances and non combustible substances. जो combustible substances वो substances होते हैं जिनको हम burn कर सकते हैं, they produce heat and light, okay, on burning. एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इनका जो है ये कंबशन के प्रोसेस इनमें नहीं हो पाता, इनमें जो है इनको हम बर्न नहीं कर सकते हैं. सो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल substances. So substances that undergoes combustion, combustible, and substances that does not undergoes combustion, that are non-combustible substances. And it is also called fuel. Your combustible substances are also called fuels. And fuels जो है, they may be solid also, liquid also, and gases also. Solid में fuel wood जो है वो burn भी करती है, and it is solid in state, it is a solid fuel. Liquid में आपका petroleum, gases में LPG. Okay, now here the list is given here in the table for the some combustible and non-combustible substances. Like your sand is non-combustible because it cannot undergoes combustion. Petrol easily burn karta hai, so that is combustible. Stone non-combustible. So in this table, the examples of combustible and non-combustible substances are given to you. Okay, now what are the conditions necessary for the combustion? एक तो सबसे पहले जो है substance should be combustible. अगर substance जो है combustible नहीं होगा, substance जो है जैसे like आपने stone लिया, stone को आप जो है वो burn नहीं कर सकते हैं, it will not undergo the process of combustion. तो वो बर्न होगा ही नहीं, तो कंबशन होगा ही नहीं. तो कंबशन के लिए what are the conditions necessary for it? First point is presence of combustible substance. जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंस कैन नॉट बर्न. ऑक्सीजन की हेल्प से जो है कंबशन जो है वो होता है, एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. ओके, इन दिस एक्टिविटी वी हैव सीन कि कैंडल जब बर्न करती है एंड वी प्लेस इन्वर्टेड glass jar over it, so after some time what you will observe, you will observe that the candle stops burning. इसका जो flame है ये it goes off. Why? Because after inverting glass over it, इसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं रही. Okay, in the absence of the oxygen, combustion cannot take place. So first condition is presence of combustible substance, second is presence of oxygen, and third is proper ignition temperature. Now what do you mean by ignition temperature? Just recall the definition कि ignition temperature होता क्या है कि it is the lowest temperature at which a substance catches fire easily. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सब्सटेंस को जो है वो फायर वो कैच करता है. I gave you many example, like here we have dry leaves and green leaves. किस केस में जो है फायर जो है वो जल्दी लगेगी? ड्राई लीव्स में या ग्रीन लीव्स में? ऑब्वियसली ड्राई लीव्स में, बिकॉज इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, इसमें मॉइस्चर है. तो वाटर इसमें प्रेजेंट नहीं है, जल्दी फायर को कैच करेगा. तो लोएस्ट टेम्परेचर पे इसने फायर को कैच कर लिया, तो दैट इज द टेम्परेचर एट विच इट सब्सटेंस कैचेस फायर. So that is the ignition temperature. Okay, so if we compare the ignition temperature of dry leaves and green leaves, so इसका ignition temperature is low. ये low temperature पे ही fire को catch कर लेगा. Okay, now the next is inflammable substances. कुछ substances ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि these substances are inflammable because they have very low ignition temperature. कि मतलब एक लो टेम्परेचर पे भी वो फायर को इजीली कैच कर लेते हैं. एंड
those substances are known as inflammable substances. Now how do we control fire? फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से जो है हम फायर को कंट्रोल करते हैं. सो फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, वाटर को हम पोर करते हैं. सो इन दिस फिगर यू कैन सी कि इफ वी आर पोरिंग वाटर ऑन द फायर, इफ वी आर पोरिंग वाटर ऑन द फायर, तो व्हाट इज हैपनिंग कि फायर जो है इट गोज ऑफ. व्हाई इट गोज ऑफ? क्योंकि जब हम पानी यहाँ डालते हैं तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई, इस सब्सटेंस जो भी बर्न हो रहा है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है. तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फायर विल गो ऑफ, फायर जो है वो बुझ जाएगी. एंड सेकेंडली पानी डालने से क्या होता है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो उतना नहीं पहुंच पाता जितना उसको चाहिए फायर को कैच करने के लिए. ठीक है, तो इस वजह से फायर जो है इट गोज ऑफ. The next topic is types of combustion. Now, what are the type of combustion? There are three type of combustion: rapid, spontaneous, and explosion. Rapid मतलब कि आपने जैसे ही उसको बर्न किया वैसे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो गई. इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ गैस स्टोव्स, जैसे आप लाइटर ऑन करते हैं और एलपीजी जो है इट स्टार्ट्स बर्निंग, तो दैट इज द रैपिड कंबशन. Spontaneous means materials suddenly burst into flame without the application of any cause. Means हमने कोई फायर नहीं लगाया और अपने आप ही जो है फायर अपने आप लग गई. जैसे यू कैन सी कि फॉरेस्ट फायर, जैसे समर्स में क्या होता है, ड्राई लीव्स होती हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. जैसे ही टेम्परेचर जो है उतना पहुंचता है उनका इग्निशन टेम्परेचर पे, ड्राई लीव्स जो है वो फायर को कैच कर लेती हैं अपने आप ही. तो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एनी कॉज फॉरेस्ट में अपने आप फायर लग जाती है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. इवन फॉस्फोरस, it is another example कि that burns in air at room temperature. फॉस्फोरस को अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं तो it catches fire. Okay, so these are the examples of the spontaneous combustion, your forest fire and the phosphorus. The third one is explosion. Explosion means like when you ignite क्रैकर्स, तो उसमें से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट आती है, लाइट आती है. सो मटेरियल दैट बर्न्स विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. These are the three types of combustion. The next topic is flame. Now you have seen कि कुछ substances ऐसे होते हैं कि जो flame produce करते हैं, या कुछ substances ऐसे होते हैं जो flame produce नहीं करते. Like when you burn candle तो इसका flame produce होता है, LPG का भी flame produce होता है, but when you burn charcoal एंड उसका फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता. चारकोल जो है इसका फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा बट इट विल प्रोड्यूस हीट. ओके, कैम्फर का भी जो है it produces flame. तो substances which vaporize during burning they produces flame. अब ऐसा क्यों है कि कुछ substances जो है वो flame produce कर रहे हैं and कुछ substances they are not producing flame? Why so? Because इस केस में, चारकोल के केस में, ये substance जो है vaporize नहीं होता. ठीक है, बट इन द केस ऑफ यू कैन सी कैंडल के केस में जो वैक्स के वेपर्स होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस फ्लेम. तो जो सब्सटेंस वेपोराइज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग दैट ओनली प्रोड्यूसेस फ्लेम. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, यू सी द फिगर flame of a candle. So it has three parts, three zones, you can say: innermost zone, middle zone and the outermost zone. Outermost zone, it is blue in color and इसको सराउंडिंग से ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीटली मिल जाती है, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इट इज गेटिंग. सो इसमें कंबशन जो है वो कंप्लीटली हो जाता है. सो आउटर जोन जो है हियर कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, कंप्लीट कंबशन होता है एंड इट इज ब्लू इन कलर. सेकेंड जोन इज योर मिडल जोन. अब यहाँ ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो उतना नहीं हो पाता है एज इट इज प्रेजेंट इन द आउटर जोन. तो यहाँ जो कंबशन होगा वो पार्शियल कंबशन होगा. Partial means half combustion take place. ठीक है, and this zone is yellow in color and it is also called non-luminous zone. And here the complete combustion take place, blue हो रहा है, complete combustion है, तो यहाँ पे complete combustion होने की वजह से ये zone जो है that is the hottest zone of the candle flame. ओके, और ये जो मिडल वाला है इसमें पार्शियल कंबशन हो रहा है तो दिस इज मॉडरेटली हॉट. एंड थर्ड वन इज द इनरमोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम.
इसमें जो है वैक्स के जो वेपर्स है वो अनबर्न्ड ही रह जाते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है. सो दिस जोन कंबशन इसमें होता ही नहीं है एंड दिस जोन इज द लीस्ट hot zone of the candle flame. Now, when you will draw the picture of the candle flame, the diagram of the candle flame, it is necessary to label the diagram. Okay. The next is a table is given and the difference between three zones of the candle flame is written. See, the outermost zone is the non-luminous and the middle zone is luminous and the inner zone dark zone. Non-luminous zone is blue in color and the luminous zone is yellow in color. Inner zone is black in color. जो आउटर मोस्ट जोन है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन हो रहा है. मिडल जोन जो है दैट इज द मॉडरेटली हॉट एंड द इनर जोन इज लीस्ट हॉट. यहाँ कंप्लीट कंबशन है, पार्शियल है और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो नो कंबशन टेक प्लेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल. व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है और हीट को प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड फ्यूल. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल? एक फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? मींस इट शुड बी इको फ्रेंडली, इट शुड नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, कि जब हम फ्यूल को बर्न करें तो वो पॉल्यूशन ना फैलाए. इट शुड नॉट एमिट हार्मफुल गैसेस एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट. उसको ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना वो ईजी रहे. एंड इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर. उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. ये नहीं कि हाँ रूम टेम्परेचर पे वो फायर कैच कर रहा है या उसको हम इतनी हीट दे रहे हैं तब भी वो फायर catch nahi kar raha. Neither too low, neither too high. So it should have proper ignition temperature. And the last one is it should have high calorific value. Calorific value का मतलब क्या होता है कि जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें से हमें कितनी हीट मिल रही है. जितनी ज्यादा हमें हीट मिलेगी उतना ही ज्यादा उसका हीट प्रोड्यूस हो रही है, उतना ही ज्यादा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी. तो कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है ऑन बर्निंग 1 kg of fuel. Okay, and it should be economical also, means it should not be so expensive, it should be cheap. Now see the definition of calorific value. It is the amount of heat energy produced on burning 1 kg of fuel. And calorific value अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल and the units of calorific value is kilojoule per kilogram. जब आप कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा आप उसके साथ किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट्स हैं वो लगाएंगे. ओके. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, यहाँ जो है कुछ फ्यूल्स आर गिवन एंड देयर कैलोरिफिक वैल्यूज आर गिवन. सो आप देख सकते हैं कि काउडंग केक की कैलोरिफिक वैल्यू सबसे कम है. तो दिस इज नॉट एन एफिशिएंट फ्यूल, आइडियल फ्यूल नहीं है. स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और हीट भी नहीं कम प्रोड्यूस हो रही है. कैलोरिफिक वैल्यू इज सो लो. एंड सी फॉर द हाइड्रोजन गैस, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू इज मैक्सिमम. Okay, so this is an efficient fuel, ideal fuel. Now, one numerical is here. In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burned and heat produces 1,80,000 और 180,000 किलो जूल. तो आपको कैलोरिफिक वैल्यू निकालनी है. तो आपको मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है कि 4.5 kg ऑफ फ्यूल को आप बर्न कर रहे हैं और कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है? 180,000 किलो जूल. सो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले इस तरीके से लिखेंगे कि क्या चीज गिवन है. उसके बाद आपने कैलोरिफिक वैल्यू निकालनी है. तो कैलोरिफिक वैल्यू का आप फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल. फिर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी दी हुई है? 180,000 और मास ऑफ फ्यूल इज गिवन टू यू 4.5. नाउ व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 40,000. अब 40,000 आंसर आ गया. अब आप कैलोरिफिक वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है? किलोजूल पर किलोग्राम. सो यू विल राइट द यूनिट्स विद द आंसर. अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे. ओके. एंड द लास्ट टॉपिक, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स. अब आपने पढ़ा है कि हाँ जब हम इन प्रोडक्ट्स को, कोई भी फ्यूल जो है वैसे आइडियल नहीं होता है. कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है कि वो इको फ्रेंडली हो, बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना करता हो. ऐसा इट इज इम्पॉसिबल. आइडियली यू कैन से बट इट इज नॉट देयर, पॉसिबल नहीं है. तो जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं हार्मफुल गैसेस निकलती ही निकलती हैं.
तो जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जब हम वुड को, कोल को बर्न करते हैं और उनमें से कुछ पार्टिकल्स जो है अनबर्न रह जाते हैं, उनसे रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। एंड व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है एंड इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचेगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक नहीं पहुंचेगी, तो व्हाट कैन हैपन, अ पर्सन मे बी डाई। Okay, so third point, burning of fuels produces carbon dioxide that leads to global warming. अब जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट ट्रैप्स सोलर रेडिएशन। और जब सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है हमारा गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा, and this leads to global warming. The last point, burning of coal and diesel produces oxides of nitrogen and sulfur that causes acid rain. जब कोल और डीजल को बर्न किया जाता है तो उसमें से ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के। और जब ये ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं, दे गेट मिक्सेस विद वाटर एंड फॉर्म एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड। एंड जब रेन होती है, दे कम along with the rain, and that rain is called acid rain, and it also has many harmful effects on living beings and non-living beings. Okay, so this was all about your this chapter, combustion and flame. Watch the video and learn the question answers and do the practice questions. Thank you, class, and have a nice day.